Good morning, students. Welcome to the class of economics. Today we will study from page number 291, chapter 12, environment and sustainable development. Two basic problems related to environment. Two basic problems related to environment are: first is problem of pollution, and second problem of excessive exploitation of natural resources or degradation of natural resources. Following sections offer a brief description of these problems. Number one, pollution. Pollution refers to those activities of production and consumption which challenge purity of air and water and thereby pollute the environment. It is a serious emerging challenge relating to the process of growth, particularly related to process of industrialization. Pollution has three forms: air pollution, water pollution, and noise pollution. डिटेल आर एज अंडर. सो पॉल्यूशन का मतलब है हमारे कंजम्पशन पैटर्न के कारण या हमारे प्रोडक्शन के कारण जो एयर, वाटर और लैंड की प्योरिटी में चैलेंज होता है, वो खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन. और हमने कल भी पढ़ा था कि जब एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा हम वेस्टेज क्रिएट करने लग जाएंगे तो एनवायरमेंट क्राइसिस आएगा, जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. एयर पॉल्यूशन, व्हेन एयर कैरीज oxygen, which is an essential element of life. Pollution of air implies pollution of an essential element of life. Accordingly, quality of life is impaired. तो अगर हम एयर पॉल्यूशन को ध्यान नहीं देंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर फर्क पड़ेगा. What causes pollution of air? Air pollution occurs owing to the presence of pollutants in the air. These pollutants may be poisonous gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, or these may be suspended particles such as dust, pollen, and smoke. Following factors contribute to air pollution. So, air pollution का मतलब है presence of pollutants in the air, and smoke emitted by the industries, particularly those using coal as an energy, poisonous gases emitted particularly by the plastic and leather industries in the process of chemical treatment of the materials. C. Emission of gases by the motor vehicles, which has risen to a threatening level owing to exponential rise in the number of vehicles. So these are the three factors which are contributing mainly to the air pollution. Number one is industries using coal, second is plastic and leather industries, and third is motor vehicles. और इससे क्या क्या बीमारियां होती है देखिए आप. एयर पोल्यूशन कॉजेज हाइपरटेंशन, अस्थमा, respiratory and cardiovascular problems. These are very deadly diseases. Let us contribute our bit and keep air pollution under check by not smoking and by not violating the emission norms as prescribed for the vehicles we use. So we should not smoke also, and we should not use the vehicles which causes more air pollution. Water pollution. Like air, water is also an essential element of human life, and its pollution is equally serious. Pollution of water relates to contamination of water. Use of polluted, contaminated water leads to the diseases like diarrhea and hepatitis. So water pollution से भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायरिया एंड हेपेटाइटिस. एंड वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए. एंड फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया. तो वाटर में पॉल्यूशन किस किस कारण से होता है? नंबर फर्स्ट is its industrial waste streaming into the rivers. Second is domestic sewerage that flows into streams and rivers. Third is agriculture runoff mixed with pesticides and insecticides that runs into streams and rivers. Fourth is thermal powerhouses discharging ash mixed with water. So these are the four factors which are responsible for the water pollution. A bitter truth. Farmers often wash vegetables in the nallas, means dirty water full of untreated sewerage water. If eaten raw, such vegetables are a sure source of deadly diseases. अगर आपके घर में जो सब्जियां आती हैं आप उनको दोबारा नहीं धोएं तो हो सकता है कि फार्मर ने उसको गंदे पानी से धोया हो. So you should wash the vegetables before use because of water pollution. Third is noise pollution. Mechanization has raised the level of efficiency, but it has equally raised the level of noise pollution. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मगर साथ साथ
नॉइज भी इंक्रीज हो रही है। नॉइज पॉल्यूशन हैज रिकॉर्डेड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ because millions of vehicles fitted with loud horn and noise generating engines are flying on the roads. Noise pollution बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि जिनके अंदर हैवी हॉर्न्स होते हैं और उनके इंजन्स भी ज्यादा आवाज करते हैं। एक्सेसिव नॉइज कॉजेज इरिटेशन एंड अननेसेसरली फैटिग्स द बॉडी एंड द माइंड। ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन से एक तो इरिटेशन होता है ह्यूमन को और थकान होती है शरीर की भी और दिमाग की भी। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट्स एंड एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है। यू मे नोट द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नंबर 1 इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। सेकंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कार्स, ट्रक्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। बी श्योर अबाउट इट, sound itself is not bad. Sound बुरा नहीं है. Who is offended when the birds chirp or when the clouds thunder? तो किसी को परेशानी नहीं होती है अगर चिड़ियाएं चहचहाती हैं और बादल आवाज करते हैं, मगर एक अनवांटेड साउंड और बिना टाइम का साउंड हमें ज्यादा परेशान करता है। अनवारंटेड एंड अनवांटेड साउंड्स like when you play your music system full blown generate noise pollution which must be stopped as a social evil. तो उसको हमें रोकना चाहिए, एक सामाजिक बुराई है ये। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम रिलेट्स टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहला प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर टू फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल कैपिटल। इसको हम नेचुरल कैपिटल भी कहते हैं बिकॉज हमको नेचर से मिलती है फ्री में। Following observations may be noted in this regard. In order to achieve economic growth, man needs natural capital along with physical capital. तो हमें ग्रोथ के लिए नेचुरल कैपिटल भी चाहिए और फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। As a result of increase in production, there is depreciation of both physical capital and natural capital. और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है इन दोनों ही चीजों में कमी आती जा रही है। Often we make provision for the replacement of physical capital. हम हमारी मशीन और हमारे व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं, but the depreciation or degradation of natural capital in terms of deforestation and degradation of land is often ignored or poorly addressed. मगर हम कभी भी नेचर को वापस उसकी चीजें देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते, हम कोई पेड़ नहीं लगाते, हम कोई एफोरेस्टेशन का काम नहीं करते। Let us attempt a brief description of the problems of deforestation and degradation of land. Deforestation. Industrialization is a boon as it offers a variety of things to consume, enhancing the quality of life. Industrialization हमारे लिए एक वरदान है क्योंकि हमारे उससे बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, बट इट इज ए बैन व्हेन इट कॉजेज डिफोरेस्टेशन। मगर वो एक हमारे लिए अभिशाप भी है क्योंकि बून के कारण, क्योंकि डिफोरेस्टेशन के कारण बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ता है, जो कि बहुत बुरा है। Trees are felled to meet the growing demand for wood and other forest products by the industries. तो wood की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस कारण जंगलों को काटा जा रहा है। Industrialization leads to urbanization and urbanization induces deforestation. More and more forests are cleared for the development of townships. Industrialization के कारण शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और शहर बसने के कारण जंगलों को काटा जा रहा है। Industrialization apart, requirement of wood by the household also leads to deforestation. इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा हाउस होल्ड भी फ्यूल के रूप में और फर्नीचर के रूप में वुड की रिक्वायरमेंट करते हैं और उस कारण भी जंगलों को काटा जाता है। इन इंडिया एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज हैज कंट्रीब्यूटेड टू एक्सप्लोसिव डिमांड फॉर फायरवुड। जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जा रही है, फायरवुड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कॉन्सिक्वेंसली ट्री फेलिंग हैज हैपेंड एट ए रैपिड पेस। और जो पेड़ों को एक बहुत ज्यादा स्पीड के साथ काटा जा रहा है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डिफोरेस्टेशन। जब कोई बड़े स्तर पर डैम्स बनाए जाते हैं तो काफी सारे जंगलों को काटना पड़ता है, काफी पेड़ उसमें खराब हो जाते हैं। 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिफोरेस्टेशन आर: नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर वुड, नंबर 2 commercial consumer demand for goods, household demand due to population, and number 3 is river valley project.
Yes, it is alarming. According to India State of Forest Report 2017, area of very dense forest in India is nearly 98,158 kilometers square, 2.99% of total land area. We have only dense forest on the 2.99% of land area. An area of moderately dense forest is about 308,318 square kilometers, means 9.38% of total land area. Did it in the backdrop of the fact that the recommended forest cover for country is 1000 lakh hectare, 33% of the total land area. और देखा जाए तो ज्योग्राफिकली 33% एरिया पर आपके फॉरेस्ट होना चाहिए, और हमारे यहाँ पर ओनली 9+3 12% एरिया एग्रीकल्चर वो फॉरेस्ट है. सो दैट इज ए बैड कंडीशन और उससे एनवायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है. What social forestry aims at? Social forestry aims at restoring or rehabilitating the forestry. It amounts to reversing the process of deforestation, spreading the vegetation cover on land to further enhance the area under forests, encouraging commercial production of raw material for the paper industry as well as the mat industry so that the existing forests are not invaded. सोशल फॉरेस्ट्री एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वेजिटेशन यानी कि पेड़ों को लगाया जाता है, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन, उन रॉ मटेरियल्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना चाहिए जो कि पेपर में और मैच इंडस्ट्री में काम में आते हैं. मतलब पेड़ों के अलावा कोई दूसरा सोर्स ढूंढा जाए जिससे कि माचिस और पेपर बन सके. एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज मीटिंग द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर एज वेल एज फायरवुड. तो हमें फास्ट ग्रोइंग ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए जो कि हमारी लकड़ी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एफॉरेस्टेशन, और पेड़ों को लगवाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. सॉइल इरोजन caused by strong winds or floods. When we talk of soil erosion, we are referring to loss of upper layer of the soil, also called topsoil, which contains major nutrients, nitrogen, phosphorus and potassium, जिसको हम शॉर्ट में NPK कहते हैं, for growth of the plant. Soil erosion का मतलब आप लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. टॉप मोस्ट सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस होता है, जिसके अंदर NPK होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के उगने के लिए, उनका बह जाना पानी से या फिर स्ट्रॉन्ग विंड से, तूफान से. Alkalinity और एंड salinity ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग. जब किसी खेत में या किसी जमीन में पानी जमा हो जाता है तो उसकी अल्केलाइन लेवल और सैलाइन लेवल बढ़ जाता है जो कि फसल के लिए अच्छा नहीं है. Excessive water logged on the topsoil, it tends to suck up the nutrients of the soil and reduces its fertility. उससे उसकी fertility भी कम होती है. In India, nearly 50% of the total landed area is exposed to degradation of one type or the other. हमारी टोटल लैंड एरिया का 50% डिग्रेडेड है. सम अर्जेंट स्टेप्स रिलेटिंग टू सॉइल कंजर्वेशन इज मीट द नीड ऑफ द आवर. तो हमें कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए उसके कंजर्वेशन के लिए. कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर एज अंडर. नंबर 1, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो हमारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का पहला कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना. One of the main causes of environmental degradation is population explosion. Pressure of population on land has tremendously increased, and consequently, land has been ruthlessly exploited. Population explosion has caused substantial conversion of forest land into industrial and residential buildings. Population बढ़ती जा रही है और उस कारण हमें रहने के लिए, मकान बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए और अदर चीजें बनाने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है, और जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है. सेकंड, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. A large section of the Indian population is absolutely poor. These people cut trees for fuel wood, which they sell to earn their livelihood. This causes a massive erosion of natural capital. गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों को अपना गुजारा कराने के लिए लकड़ियों को काटना पड़ता है और उसको बेचना पड़ता है बाजार में. इस कारण भी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज कॉज्ड प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड अदर सिविक एमिनिटीज. इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज.
बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उसके कारण ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज लोगों को चाहिए, ज्यादा मकान बना रहे हैं, इस कारण जमीन की डिमांड बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादा इनके इस्तेमाल के कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन तीनों होते हैं और इंडस्ट्रियल स्मोक एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के कारण नॉइज एंड एयर पोल्यूशन फैलता जा रहा है। डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स, द जनरल पब्लिक इन इंडिया टेंड्स टू डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म्स, ऑफन द रोड्स आर लिटर्ड, गंदगी फैलाई जाती है, हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज, और हॉर्न्स और लाउड स्पीकर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जो कि पॉल्यूशन को फैलाता है। ब्रीफली, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन is the consequence of rapid urbanization and industrialization. Besides man's disregard to the civil norms, it is culminating into global crisis and needs urgent redressal at the national and international level. अगर हम हमारी व्यवस्थाओं को नहीं चलाएंगे, हम अगर सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं बनाएंगे तो पॉल्यूशन फैलता जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन फैलेगा, उससे लोगों को परेशानी होगी, इरिटेशन होगा और पूरी सोसाइटी के अंदर परेशानी आएगी। हम कचरा फैलाएंगे, हम हॉर्न्स बजाएंगे, लाउड स्पीकर्स को बजाएंगे तो उससे ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। सप्लाई डिमांड रिवर्सल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन owes a great deal to supply demand reversal of resources over a period of time. Prior to industrialization, when the pace of life was slow, the demand for natural resources did not exceed their supply. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पहले डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। मैन लिव्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ नेचर, नेवर एज इट्स कमांडर और इट्स एक्सप्लॉइटर। मैन खुद एक नेचर का कंपोनेंट था, वो ना तो उसको कंट्रोल करता था और ना उसको एक्सप्लॉइट करता था। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस, देयर वाज ए सर्ज इन ह्यूमन बॉन्ड्स, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, ह्यूमन नीड्स और बॉन्ड्स भी बढ़ती गई। अकॉर्डिंगली देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज हो गई, लीडिंग टू देयर ओवर यूज एज वेल एज मिसयूज, और उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज होने लगा और मिसयूज होने लगा। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज सफर्ड अ रिवर्सल फ्रॉम एबंडेंस टू पॉसिटी, तो इसी को हम कह रहे हैं रिवर्सल। पहले रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एबंडेंस में थी और अब वो पॉसिटी में आ गई है, मतलब उसकी कमी हो गई है, लिमिटेशन हो गई है। डिमांड ऑन द अदर हैंड हैज रिवर्स फ्रॉम मैनेजेबल टू अनमैनेजेबल लिमिट्स, और जो डिमांड्स हैं पहले वो मैनेजेबल थी, हम उनको पूरा कर सकते थे, अब वो अनमैनेजेबल हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज ए सिचुएशन रेफरिंग टू ए ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर थैंक्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन के कारण और जंगलों को काटने के कारण जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। owing to emission of greenhouse gases, carbon dioxide, the Earth's surface is becoming increasingly warmer, showing a rise of 0.6% Celsius, 6 डिग्री सेल्सियस during the past century. पिछले 100 साल के अंदर ओवरऑल टेम्परेचर का एवरेज 0.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। वार्मिंग टेम्परेचर इज एस्केलेटिंग द मेल्ट ऑफ पोलर आइस, इन टर्न इम्प्लाइंग अ राइज इन सी लेवल, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल हैं, उनकी जो आइस है वो पिघलने लगी है और उस कारण सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पेयर्ड, और इससे कुल मिला के पूरी हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। इन्फ्लिक्टिंग ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, और नेचुरल कैलेमिटीज का खतरा ज्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली इट इम्प्लाइज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, कुल मिला के इससे हमारी जिंदगी को खतरा है। दो पुअर कंट्रीज आर टू बी द फर्स्ट एंड वर्स्ट सफरर्स, और सबसे ज्यादा असर जो पुअर कंट्रीज है उन पे पड़ेगा। ओजोन डिप्लीशन इज द सेकंड प्रॉब्लम, दिस रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन, अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर। इट अकर्स owing to the excessive use of cooling substances in air conditioners and refrigerators. As ozone depletes, there is greater ultraviolet radiation reaching the earth, which is a danger to living organisms. सन की रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक है, और ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ के ऊपर वो हमें उस रेज से बचाती है। इन द रिसेंट पास्ट
nearly 5% depletion in ozone layer has been recorded, which is an issue of global concern. और ये इस लेयर पे बुरा असर पड़ता है हमारे जो हम कूलिंग सब्सटेंसेज यूज में लेते हैं हमारी एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इंक्रीज निकलती है, सीएफसी जिसको कहते हैं, और उसके कारण ओजोन लेयर पे फर्क पड़ता है. सो वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ सच गैस. एंड अभी तक 5% डिप्लीशन यानी कि डिक्रीज हुआ है ओजोन लेयर के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा इश्यू है. ओके, आप नोट्स बनाएं और ग्रुप में पोस्ट करें. हैव ए गुड डे.